So in the previous videos we have learned or we have studied the chapter 7. It was glimpses of India. It comprises of 3 parts. The first one was a baker from Goa, the second one was Kur, and this one is the third part. It's tea from Assam. So these chapters actually it's given in the title that glimpses of India means various parts of India has been described in this video. Okay. So this video is meant for class 10 of first flight. Okay. Chapter 7, glimpses of India, part 3, tea from the sun. Now let's get on to the chapter. As it is very clear from the name heading that tea from Assam means we are now going to read something about Assam or the tea gardens that we have there. Pranjal, it's a name. A youngster from Assam is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is a manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. So this is the plot of the story, how Pranjal and Rajveer are related, why they are going to Assam. So Pranjal is actually a resident or a person belongs to Assam. His father is a manager, is in one of the tea estate in Assam, and he reads in Delhi. In Delhi, he has a friend named Rajveer, and he is going along with Pranjal to spend his summer vacation there in Assam. Now the chapter starts. They are in a train. It's very common scene in there that chai garam chai, a vendor called out in a high-pitched voice. आप लोग ट्रेन में कभी ना कभी सफर किए होंगे, आपने देखा होगा कि वहां पर वेंडर्स अलग अलग आते हैं, लेकिन सबका बोलने का तरीका लगभग एक ही जैसा होता है. He came up to their window and asked, "Chai saab," means he asked him that would they like to have tea. Pranjal said, "Give us 2 cups." He asks for 2 cups. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking this soup. तो वो लोग वो जो भाप निकल रहा गर्म लिक्विड है उसको वो लोग पीता है, ये स्टीमिंग हॉट लिक्विड टी. और लगभग उनके कंपार्टमेंट यानी वो जिस डब्बे में बैठे हुए थे ट्रेन के, उस डब्बे का लगभग भर व्यक्ति चाय पी रहा है. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. Rajveer एक फैक्ट बता रहा है चाय पीते हुए. वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि 80 करोड़ कप चाय लगभग हर रोज दुनिया में पी जाती है? तो प्रांजल जो है थोड़ा विस्मय होते हुए कहता है, एक्सप्लेन प्रांजल क्यों? टी रियली इज वेरी पॉपुलर. टी सही में बहुत ही प्रसिद्ध है. The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in this detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. तो ट्रेन जो है वो स्टेशन से अब बाहर निकलती है, यानी स्टेशन से आगे बढ़ रही है. प्रांजल डिटेक्टिव एक कोई जासूसी की किताब पढ़ रहा है, उसमें वो फिर से पढ़ने में व्यस्त हो जाता है. यहाँ पर एक वर्ड किया है buried his nose. उसने अपना नाक काट दिया. तो नाक काटा मतलब कि वो पढ़ने में फिर से व्यस्त हो गया. राजवीर भी डिटेक्टिव जासूसी कहानियों का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन अभी वो बाहर की सीनरी को देखने में व्यस्त था. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी. राजवीर ने कभी भी इतनी हरियाली नहीं देखी थी. जैसा शुरुआत में बता दिया है, they are from दिल्ली. वो दिल्ली में पढ़ता है, राजवीर दिल्ली से ही है, तो इसलिए उसने दिल्ली जैसा, क्योंकि एक मेट्रो शहर है, वहाँ आबादी ज्यादा है, इमारतें ज्यादा है, जो बचा खुचा है वो इंडस्ट्री से भरा हुआ है, लोगों के घरों से भरा हुआ है, तो वहाँ पर हरियाली देखने को उसे नहीं मिलती है. इसीलिए यहाँ पर ये लाइन लिखा हुआ है कि राजवीर ने पहले कभी भी ग्रीनरी इतनी नहीं देखी थी. उसके बाद सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स यानी धान के खेत जो हैं
अब खत्म हो गए थे और अब क्या दिखाई देने लगे थे? चाय की झाड़ियां, जो जिससे चाय पत्ती बनती है। एक्चुअली में जो चाय आप यूज करते हैं वो टी ही कहलाता है प्लांट के तौर पे, और उनकी झाड़ियां होती हैं, उनसे पत्तियां तोड़ी जाती है, उनको प्रोसेस किया जाता है, और जो आपके घरों में दिखती है वो उसी पत्ती का प्रोसेस किया हुआ प्रोडक्ट है। So it was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hill. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. ये बहुत ही विहंगम दृश्य था। पीछे जंगल दिख रहे थे, पहाड़ियां दिख रही थी जो जंगल से भरे हुए थे, और उनके सामने मानो चाय का झाड़ियों का एक समंदर सा था, और जहां तक आंखें दिख रही थी वहां तक केवल चाय की झाड़ियां ही नजर आ रही थी। Dwarfing the tiny tea plants were tall, story-shaped trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved tall-like figures. तो चाय की झाड़ियों में छोटे-छोटे पेड़ भी होते हैं जो छाया देने का काम करते हैं, और उनके बीच में डॉल यानी गुड़ियों की तरह कुछ आकृतियां घूम रही थी। तो जो वहां पर लोग पत्तियां तोड़ने का काम करते हैं, वही लोगों को वो दूर से देख रहा था जो उन झाड़ियों के बीच में पत्तियां तोड़ रहे थे। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimney. थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा बदसूरत सा बिल्डिंग था जिससे चिमनी में से धुआं निकल रहा था। वो टी प्रोसेसिंग प्लांट था। Hey, a tea garden, राजवीर cried excitedly. राजवीर जो है चीखता है और कहता है, खुश होकर चिल्लाता है और कहता, देखो चाय का बागान। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. और राजवीर तो काफी एक्साइटेड हो गया, लेकिन प्रांजल जो उन्हीं जगहों में पैदा हुआ था, पला बढ़ा, उतना उसको एक्साइटमेंट राजवीर जितना नहीं था। All this is tea country now. Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plants in the world. You'll see enough gardens to last you a lifetime. ये जो चाय का देश है, असम चाय का देश कहलाता है। इसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का प्लांटेशन है, और आप यहाँ पर इतने बागान देख सकते हैं चाय के कि आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन चाय के बागान खत्म नहीं। I have been reading as much as I could about tea. Rajveer said, no one really knows who discovered tea, but there are many legends. मैं चाय के बारे में मुझे जितना मिल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, राजवीर कहता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि आखिर चाय का आविष्कार किसने किया था। लेकिन कुछ कहानियां हैं इसके पीछे, लेजेंड्स। व्हाट लेजेंड्स? कौन सी कहानियां? ये प्रांजल पूछता है। तो वो पहला कहानी बताता है, well there is the one about Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. तो एक कहानी ये है कि चीन का एक राजा था जो हमेशा पानी पीने से पहले उसे उबाल लिया करता था। एक दिन जिन टहनियों से, जिन डंटियों से आग जलाकर उस पानी को गर्म किया जा रहा था, उस बर्तन में उन्हीं डंटियों में से कुछ पत्तियां उड़कर उसमें गिर गई, जो उसने उस पानी को बहुत अच्छा स्वाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि शायद यही चाय की पत्तियां थी। Tell me another, scoffed Pranjal. Pranjal उसे कहता है कि दूसरा वाला बताओ। तो वो कहता है, we have an Indian legend too, Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants were put in hot water, had drunk, banished sleep. तो एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्म जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने अपनी पलकों को काटकर फेंक दिया था, क्योंकि उन पलकों के कारण ध्यान लगाने के समय उन्हें नींद आई। तो उन पलकों, वो पलकें जो उन्होंने फेंकी, आइलिड्स जो फेंका, उससे 10 चाय की पत्तियां उगी, और ये चाय की पत्तियां जब उबलते पानी में डाली जाती थी तो उनसे नींद गायब होती थी। आप भी आज देखते होंगे कि आपके घरों में भी लोग जो आपके बड़े हैं, उन्हें जब नींद आती है तो
तो कहते हैं बहुत नींद आ रही है, चाय पी लेते हैं। Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back in 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and chini are from China. Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as a beverage. चाय पहली बार चाइना में पी गई, राजवीर ने बताया, करीब करीब 2700 BC यानी ईसा पूर्व पहले। यहाँ तक कि शब्द जैसे चाय और चीनी जो हैं ये चाइना के ही शब्द हैं। चाय यूरोप में 16वीं सदी में आई और उस समय चाय दवाई के तौर पर पी जाती थी, न कि किसी बेवरेज कहा जाता है ड्रिंक्स को जो आप स्वाद के लिए पीते हैं, जैसे लस्सी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, नींबू पानी हो गया, शरबत हो गया, these are all called as beverages। तो उस समय यूरोप में चाय को दवाई के तौर पे लिया जाता था, न कि किसी बेवरेज के तौर पर। The train clattered into Mariani Junction. The boys collected their luggage and put their way to the crowded platform. ट्रेन जो है अब mariani जंक्शन पे पहुंच चुका था। लड़कों ने अपना लगेज किया और वो लोग भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने लगे। Pranjal's parents were waiting from them. Soon they were driving towards Thekiabadi, the tea garden managed by Pranjal's father. प्रांजल के जो माता पिता हैं वो इंतजार कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे। वो लोग थोड़ी ही देर में ढेकियाबाड़ी नाम की जगह की तरफ बढ़ चले थे। ढेकियाबाड़ी प्रांजल के पिताजी उस चाय बागान का नाम था जिसे प्रांजल के पिताजी चलाते थे। An hour later the car veered sharply off the main road. They crossed the cattle bridge and entered ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट। 1 घंटे के बाद करीब वो जो कार है उनका वो मेन रोड से हटकर एक दूसरे रास्ते में घुसा। वहां से एक कैटल ब्रिज यानी छोटा सा पुल जो गाय जानवर आदि को पार होने के लिए बनाया जाता है पानी के ऊपर, वो उन्होंने पार किया और उसके बाद ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में उनका कार चला गया। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. वो जो ग्रेवल यानी कच्चा रोड था, उसके दोनों तरफ एकड़ों में चाय की झाड़ियां फैली हुई थी, जो सभी के सभी बहुत ही अच्छी तरीके से काटी गई थी बराबर हाइट में। वहां पर चाय तोड़ने वालों का झुंड था, जिनके पीछे बांस की बास्केट्स लटक रहे थे। उन्होंने प्लास्टिक का एप्रन पहना हुआ था और वो लोग नई उगी हुई पत्तियों का जो कोपल है, कोपले यानी जो पत्तियों का सबसे टॉप वाला हिस्सा जो नया होता है उन्हें कहते हैं, तो वो लोग उसे तोड़ रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के पिता थोड़ा धीरे करते हैं अपनी कार को, क्योंकि सामने से ट्रैक्टर आ रहा था जिसके पीछे ट्रेलर था जो चाय की पत्तियों से भरा हुआ था। तो वो कहता है, this is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? Rajveer asked it last from May to July and feels the best. तो राजवीर जो है उनके पिता से पूछता है प्रांजल के कि ये दूसरा सीजन है ना पत्तियों को तोड़ने का, ये मई से जुलाई तक चलता है और सबसे बेहतरीन चाय इसी से बनती है। तो उसके पिता जवाब देते हैं, you seem to have done your homework before coming. प्रांजल के पिता उससे कहते हैं कि लगता है यहाँ आने से पहले तुमने अपना पूरा होमवर्क किया है। तो उसके बाद वो कहता है, yes Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. और राजवीर इसके बाद हाँ करते हुए कहता है कि हाँ मैंने तो काफी चीजें पढ़ी है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं और भी चीजें सीखूंगा। Thank you. This is for all. Thank you.